மார்பில் சாய்ந்து தினமும் உம்மோடு சேர்ந்து தினமும் உன் மார்பில் சாய்ந்து விலக முடியாது அன்பே உயிரே என் இயேசு ராஜா விலக முடியாது அன்பே உயிரே என் இயேசு ராஜா நேசிக்கிறே 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 இயேசுவே நேசிக்கிறே. Greetings and blessings in the wonderful name of Jesus Christ. यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आप सबों को जय मसीह की. Thank you for joining us as we speak God's blessing and favor and His eternal love for you. धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जब हम परमेश्वर के आशीर्वाद को उनके अनंत जीवन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं. I'm trusting Jesus that His mighty hand will come upon you even right now. मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी हाथ आपके ऊपर में अभी भी उतरेगा. One of the most wonderful things is to be called by Jesus Christ for ministry. और एक अद्भुत बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाते हैं, Particularly when Jesus calls you to be a preacher of the gospel. और खास करके जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार के लिए आपको बुलाते हैं. Jesus has love and compassion for all people. यीशु मसीह हर एक लोगों के ऊपर दया और प्रेम को दिखाता है. But he saw that so many of the people are like sheep without a shepherd. लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना चरवाहा के भेड़ हैं. And he said to his disciples to pray to the Lord of the harvest for more workers. और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि उस खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वो बहुत सारे मजदूरों को भेज दे. And this is because the harvest is large but the workers are few. यह इसलिए क्योंकि फसल तो बहुत सारे पकी हुई हैं लेकिन काटने के लिए मजदूर की कमी है. And what a great, large, tremendous harvest there still is in India. और भारत में आज बहुत सारे फसल काटने के लिए बाकी है. So Jesus Christ will call more people to become preachers of the gospel. इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को बुला रहे हैं ताकि वो सुसमाचार के कार्य करें. Particularly as we pray and ask God for the workers. विशेष करके जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत सारे वो मजदूरों को भेजे. So that's my prayer today. Jesus, raise up more workers for the harvest fields. आज मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह उस फसल को काटने के लिए बहुत सारे मजदूरों को खड़ा करें. I love coming to India. I love the Indian people. और मैं भारतीय लोगों से बहुत प्रेम करता हूं और यहाँ आना मुझे बहुत पसंद है. But I know that my time in India is only short. लेकिन मैं जानता हूं कि भारत में मेरा समय बहुत ही कम है. So my prayer is somehow God use me to inspire more workers. इसलिए मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे ताकि मैं बहुत सारे मजदूरों को उत्साहित कर सकूं. And maybe God will answer my prayer by releasing a greater call of God in your life today. और आज शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे इसके द्वारा कि वो उस बुलाहट को आपके जीवन में खोल दे. Maybe there's a young person listening and you never thought Jesus would call you to be a preacher of the gospel. शायद आप एक ऐसे नौजवान हैं जो कभी आपने सोचा नहीं है कि यीशु आपको सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाएंगे. But Jesus can release the power of the Holy Spirit in your life. और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आपके जीवन में उतार सकते हैं. So that there is a stirring in your hearts that God has a greater calling for you. ताकि आपके हृदय में एक प्रकार की उत्तेजना हो उस परमेश्वर की बुलाहट के लिए. And that's what happened in my own life when I was just a young person. और यही बात मेरे साथ भी हुई जब मैं नौजवान था. When I was quite young, I thought, oh, it would be nice. I would like to become a doctor. और जब मैं नौजवान था तो मैं ये सोचता था कि मेरे लिए एक डॉक्टर बनना बहुत अच्छा है.
Later on, I was very good at running, just like my father is still very good at running today, still running marathons as an old man. और बाद में मैं दौड़ने वाला एक धावक था, जैसे मेरे पिताजी आज भी वो दौड़ते हैं, मैराथन में दौड़ लगाते हैं। Later on, I took up music and thought, oh, it'd be great to be in some famous bands. और बाद में मैंने संगीत को चुना और मैंने सोचा कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा होगा, एक बहुत ही लोकप्रिय बैंड बनना। But when I was 16 years old, the power of the Holy Spirit came upon me. लेकिन जब मैं 16 साल का था, प्रभु की सामर्थ मेरे ऊपर उतरा And I knew that Jesus was calling me to preach the gospel. और मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे बुला रहे हैं। It was such an earnest calling, such a powerful calling. I knew that this was the greatest work to do. और यह एक बहुत ही सामर्थी बुलाहट था हमारे लिए, क्योंकि मैं इस बात को समझ में आया कि परमेश्वर अपने कार्य के लिए मुझे बुला रहे हैं। That even saving one soul is worth more than all the world. क्योंकि एक आत्मा को भी बचाना पूरे संसार को प्राप्त करने से बेहतर है। And I'm so thankful that as I have continued to follow Jesus, Jesus has taken me on an amazing journey. और मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर आज मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को इस यात्रा में शामिल करने के लिए। So I want to encourage you to pursue the call of God for your life. इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की बुलाहट को आप अपने जीवन में ले लें। As we continue to pray for the gospel to be preached in every village of India. और जैसे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि भारत के हर एक गांव में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार हो। There must be an established church for every tribe in India. ताकि हर एक जाति के बीच में एक कलीसिया खड़ा हो सके भारत में। That's Jesus' promise, and this is the great work that God is doing. और ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है और ये कार्य वो कर रहे हैं। Well, today I want to look at the example of Jonah because he was called to be a preacher. और आज मैं एक उदाहरण को देखना चाहता हूं योना के बारे में, क्योंकि उसे भी एक प्रचारक के रूप में बुलाया गया था। And first of all, he runs away. लेकिन सर्वप्रथम वह उस बुलाहट से भाग जाता है। He denies his calling. वह अपनी बुलाहट को इनकार करता है। But thankfully, God gives him a second chance. लेकिन परमेश्वर फिर से उसे दोबारा मौका देता है। And maybe today there is someone listening and you need to receive God's second chance for ministry. शायद आप में से कोई ऐसे व्यक्ति सुन रहे हैं जो सेवकाई के लिए शायद आपको दूसरे मौके की जरूरत है। Maybe God called you many years ago. हो सकता है परमेश्वर कई वर्ष पहले आपको बुलाहट दिया है, But you didn't fully submit to God. लेकिन आपने अपना पूर्ण समर्पण परमेश्वर को नहीं दिया। And maybe you're thinking now, oh, it's too late. शायद आप सोच रहे होंगे कि अब बहुत देर हो चुकी है। But God can come and call you a second time. लेकिन परमेश्वर आपको फिर से दोबारा मौका देता है। Let's look at the example of Jonah from आइए हम- Jonah chapter 3. आइए हम योना के उदाहरण को योना की पुस्तक उसके 3 अध्याय से देखें। Reading from verse 1. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. हम 3 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। तब ये यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। Verse 2. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। Verse 3. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। Verse 4. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. पद 4। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। Verse 5. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth.
पद 5, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर की वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। Verse 6, when Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. पद 6, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। Amen. आमीन। So Jonah is a very interesting prophet of God. योना एक बहुत ही रुचिकर भविष्यवक्ता है परमेश्वर का। It seems in this book of Jonah that he has so many wrong attitudes. और इस किताब से ये बातों को देखते हैं कि उसके अंदर में कई सारे गलत भावना थी। Yet on the other hand, God works so marvelously and wonderful in his life. और देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से उसके जीवन में काम करते हैं। So despite his wrong attitudes, Jonah becomes a mighty man of God. और उसके गलत मनोभाव होने के बावजूद भी परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत रीति से काम करते हैं। To become powerful preachers, we need to allow Jesus to teach us and to train us. एक शक्तिशाली प्रचारक होने के लिए हमें यीशु को सहमति देना है कि वो हमारे जीवन में कार्य करे, Dealing with any wrong attitudes that we have in our lives. ताकि हर एक गलत मनोभाव को ठीक करे हमारे जीवन में। So we see that when Jesus was training his 12 apostles, he was constantly speaking the truth to them. और जब हम देखते हैं कि यीशु जब अपने 12 चेलों को शिक्षित कर रहा था तो लगातार वह सच्चाई को चेलों से बता रहा था। The disciples would be arguing among themselves, who's the greatest? और चेले लोग अपने बीच में ही कई बार बहस करते थे कि हम में से बड़ा कौन है। And Jesus would rebuke them and tell them, you have to become like a little child. और यीशु मसीह उन्हें डांटते थे और कहते थे कि तुम्हें एक छोटे बच्चे के समान होना है, Or you have to become a servant. या तुम्हें एक दास को जैसा बनना है। So Jesus was molding and making his disciples, getting rid of their wrong attitudes. तो यीशु मसीह उनको बना रहे थे और उनको तैयार कर रहे थे ताकि वो अपने गलत मनोभाव से बाहर निकले। You know, following Jesus is a lifelong journey. यीशु मसीह के पीछे चलना ये हमारा जीवन भर का यात्रा है। And I've seen many who have started in ministry but they have not persevered and overcome in ministry. बहुत सारे लोग जो हैं सेवकाई की शुरुआत तो की है लेकिन उस सेवकाई को वो अंत नहीं कर पाए हैं या स्थिर नहीं रह पाए हैं। And sometimes they have not developed a strength of prayer and devotion to Jesus. क्योंकि कई बार उनका प्रार्थना का जीवन और जो भक्ति का जीवन यीशु के साथ है उसे वो कर नहीं पाए, And therefore they have fallen and at times lost their ministry. और वे गिर गए और एक ऐसे समय आया जब उनकी सेवकाई जो है समाप्त हो गई। I think it's very important to understand why Jesus allowed Judas Iscariot to be among the 12. हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्यों यीशु मसीह यहूदा इस्करियोत को अपने साथ रहने दिया। So many have been called to ministry, but so many have become like Judas Iscariot. बहुत सारे लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं लेकिन बहुत सारे लोग यहूदा इस्करियोत के समान बन गए हैं। If only every pastor took note of this powerful warning in the Word of God. यदि हम परमेश्वर के वचन के जो शक्तिशाली चेतावनी है अगर हम उसे ध्यान देते। It's so sad when a pastor falls into sin and refuses to repent. ये बहुत दुखद बात है जब एक सेवक पाप में गिर जाता है और वह पश्चाताप करने से इनकार करता है। God can give a second chance, but only if a person repents. परमेश्वर दूसरी मौका दे सकता है अगर वह फिर से पश्चाताप करे। And God really had to shake Jonah's life to bring him to this place of submission to God. और परमेश्वर को सचमुच योना के जीवन को कस के हिलाना पड़ा ताकि वह फिर से वापस परमेश्वर की बुलाहट में आ जाए। And God did that when Jonah was running away. God sent a mighty storm on the ocean. और परमेश्वर ने ऐसा ही किया जब योना भाग रहा था तो परमेश्वर समुद्र में एक बहुत बड़ी आंधी को चला दी।
But all the other sailors were so amazed. Why is Jonah asleep in the middle of the storm? और जितने भी जहाज पर रहने वाले लोग थे इस बात से अचंभित थे कि इतने बड़े समुद्री आंधी के बीच में योना क्यों जो है चुपचाप सो रहा है। They woke him up to force him to get praying. और उन लोगों ने योना को जगाया जबरदस्ती ताकि वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करे। If you're in ministry, you have to be strong in prayer. यदि आप सेवकाई में हैं तो आपको प्रार्थना में सचमुच मजबूत होना है। You have to wake up and pray. आपको जगने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है। So finally, Jonah wakes up and he confesses that he's running away from God. और अंत में वो उठता है और अपने गलतियों को मानता है कि वो परमेश्वर से भाग रहा था। Make sure you confess your sin whenever you fall into sin. इस बात से आप निश्चित कर लीजिए कि जब कभी आप पाप में गिरते हैं तो आप इससे पश्चाताप करते हैं। Do not become like King David who denied his sin. दाऊद के समान मत बनिए जिसने अपने पाप का इनकार किया। And he was only brought to the place of repentance for having committed adultery when a prophet spoke a powerful word of wisdom to him. वो तभी अपने पापों से पश्चाताप किया जब परमेश्वर के सामर्थी भविष्यवक्ता आकर के उसका सामना किया। For a long time he had been denying his sin and thinking, oh, it doesn't matter, I'm the king, it's okay. और लंबे समय तक वो अपने पापों से इनकार करते रहा क्योंकि वो सोचा अरे मैं तो राजा हूं, ये सब कुछ ठीक ही है। But God confronted him with his sin by the words that were so wise from the prophet's mouth. लेकिन परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा अपने सामर्थी वचन के द्वारा उसके साथ सामना किया। And the prophet spoke like a parable to show and expose David to himself. और भविष्यवक्ता जो है दाऊद के साथ एक दृष्टांत के रूप में बात किया ताकि वह जो है अपने गलतियों को समझ सके। And when he realized what a terrible sinner he is, what a terrible thing he has done, his heart was broken. जब वो इस बात का एहसास हुआ दाऊद को कि उसने कितना खतरनाक भयंकर पाप किया है तब उसका हृदय जो है टूटा। I've heard of some worship leaders who have fallen in a very similar way into sin like King David. और मैंने आराधना के अगुओं के बारे में सुना है जो दाऊद के समान ऐसे पाप में गिरा है। I hope the word of God will break their hearts and they will come to the place of true repentance. मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उसके हृदय को तोड़ेंगे और वो सच्चे पश्चाताप में आएंगे। They will realize that they were not putting Jesus Christ first in their lives. और वो इस बात की एहसास करेंगे कि यीशु मसीह को वो अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। We must know that God created marriage to be holy. और हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर विवाह को पवित्र ठहराया है। And God himself will judge those who are committing adultery. और परमेश्वर स्वयं जो है इस बात का न्याय करेगा जो व्यभिचार करते हैं। If you have fallen, please repent. यदि आप गिरे हैं ऐसे पाप में तो पश्चाताप कीजिए। Please come to Jesus and ask for his mercy and forgiveness. आप यीशु के पास लौट आइए और उसके क्षमा को की याचना करें। But true repentance means that the sin is totally washed away from you. और सच्चे पश्चाताप का मतलब है कि आपके पाप जो है पूरी रीति से धो दिया गया है। If you're going to keep falling into that same sin again, that means you have not repented. अगर आप लगातार उस पाप में गिरते जा रहे हैं इसका मतलब है कि आप पूरी रीति से पश्चाताप नहीं किया है। When King David came to the place of true repentance, he never fell into that same sin again. और जब दाऊद पूरी रीति से पश्चाताप किया फिर से दोबारा वह पाप में नहीं गिरा है। So we should not take God's grace in vain. इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को हमें बेकार में नहीं लेना है। Because there does come a time when God gives his last chance to क्योंकि repent. एक ऐसे समय आएगा जब परमेश्वर आपको अंतिम मौका देगा। Now Jonah speaks the truth because he's a prophet of God. अब योना
सच्चाई को बताता है, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, भविष्यवक्ता है। And he gives the correct answer for how to stop the storm. और वह सही उत्तर देता है ताकि आंधी जो है थम जाए। And he tells the sailors to throw him overboard into the storm. और वो जहाज के लोगों को कहता है कि वह उसे उठाकर उसे पानी में फेंक दे। And the sailors are so fearful. Oh no, we don't want to be responsible for your death. लेकिन जो जहाज के लोग थे वे सोचने लगे कि नहीं नहीं, तुम्हारे मृत्यु का जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहता हूं। It's quite a surprising thing that Jonah was willing to almost die. लेकिन ये एक बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक बात था कि योना जो है मरने के लिए तैयार था। Maybe he knew that God has all power, and that even if he's thrown out into the ocean, God can save him. शायद उसे पता था कि परमेश्वर वो शक्तिशाली परमेश्वर है, अगर उसे उठाकर समुद्र में भी फेंक दिया जाए तो परमेश्वर उसे बचा लेगा। Amazing faith, really. और ये सचमुच अद्भुत विश्वास है, भरोसा है। But God brings about Jonah's deliverance in a very interesting way. लेकिन परमेश्वर योना के छुटकारे को जो है बहुत ही एक रुचिकर तरीके से लेकर आता है। Jonah gets swallowed by a large fish. और योना को एक बड़ी मछली जो है निगल जाता है। An amazing experience. What would it be like to be inside the belly of a large fish? ये सचमुच अद्भुत है। ये कैसा होगा एक बड़ी मछली के पेट में होना? It would certainly force you to be crying out to God for mercy. शायद ये सचमुच आपको दबाव देगा कि आप परमेश्वर की दया के लिए चिल्लाएं। And that's what happens. Jonah is pleading with God. और यही होता है कि योना परमेश्वर को की दुहाई देता है। He's crying out to God to be rescued and to be saved from the jaws of death. और वो परमेश्वर की दुहाई देता है कि परमेश्वर वो मृत्यु के जाल से, फंदा से उसे बचा ले। There was no hope for him unless God does a miracle. क्योंकि उसके लिए कोई आशा नहीं थी यदि परमेश्वर कोई अद्भुत काम न करे। And that was the result of his sin. और यह था उसके पाप का परिणाम। But out of that, God was going to bring salvation. लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर एक उद्धार को लेके आ रहा था। And I know many people who have become powerful preachers because of God's great mercy and giving them a second chance. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर जब दूसरी बार मौका देता है तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर के सामर्थ्य दास बने हैं। And that's why I'm speaking to anyone out there who knows that you have sinned, you have failed God. इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप में से अगर कोई है जो गिर गया है, जो पहली मौका को खो दिया है, तो यहाँ आपके लिए दूसरी मौका है। But today Jesus is giving you a second chance. आज यीशु मसीह आपको ये दूसरी मौका दे रहे हैं। Jesus is calling you again to be a preacher of the gospel. यीशु मसीह फिर से आपको सुसमाचार का प्रचारक होने के लिए बुला रहे हैं। Because Jesus wants to anoint you to be a powerful preacher for the glory of his name. क्योंकि यीशु मसीह आपको फिर से अभिषेक करना चाहते हैं ताकि वो अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। And Jesus is ready to release you into your ministry. और प्रभु यीशु मसीह तैयार हैं ताकि आपको सेवा के लिए आपको रिलीज करे। He's going to open doors for you. वो आपके लिए एक नया द्वार खोलने जा रहा है। He's going to fill your heart with his love. वो आपके हृदय को अपने प्रेम से भरना चाह रहा है। Because there is a powerful call of God on your life. क्योंकि आपके जीवन में एक शक्तिशाली बुलाहट है। The devil tried to steal your calling. शैतान जो है आपकी बुलाहट को चुराने की कोशिश किया है। But Jesus Christ is releasing your calling right now. लेकिन यीशु मसीह आपकी बुलाहट को फिर से रिलीज कर रहा है। So the word of God comes to Jonah a second time. तो परमेश्वर का वचन जो है योना के पास दूसरी बार आता है। And he's called to go to a great city, a large city of many people. और उसे एक बहुत बड़े शहर में भेजा जाता है। And he's told that he can only proclaim the message that God gives him. और वो कहता है कि वो उसी वचन का प्रचार करेगा जो परमेश्वर उसे देता है। This is another key to being a true preacher. यह एक दूसरी चाबी है एक सच्चा प्रचारक होने के लिए। You've got to ask Jesus for your message. आपको यीशु से मांगने की आवश्यकता है
आपको उस संदेश को। God has so many amazing messages that we can bring out of the Bible. There's such depth in the Bible. और परमेश्वर के कई सारे संदेश हैं जो आप बाइबल से ले सकते हैं, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे संदेश की गहराई है। And we are called to present the gospel. और हम इसलिए बुलाए गए हैं कि सुसमाचार को प्रस्तुत करें। But there is a right time and a right season for the right message God wants to speak through you. लेकिन एक सही समय एक सही संदेश के लिए होता है। There's a time when Jesus calls us to be evangelists to reach the lost. और एक समय है जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार कार्य के लिए उन खोए हुए लोगों के लिए बुलाते हैं। There are times when Jesus calls us to be Bible teachers and to explain and expand the Word of God. और एक समय होता है जब प्रभु यीशु मसीह बाइबल के शिक्षक होने के लिए बुलाते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को विस्तार से और गहराई से सिखा सके, समझा सके। There are times when God may give us visions and dreams. एक समय होता है जब परमेश्वर आपको दर्शन देते हैं, आपको स्वप्न देते हैं, And give us a prophetic anointing to speak a prophetic word. और भविष्यवक्ता का अभिषेक देते हैं ताकि आप भविष्यवाणी कर सके। There are times when God gives an apostolic anointing to plant churches. और एक समय होता है जब परमेश्वर प्रेरिताई का अभिषेक देता है ताकि आप कलीसिया की स्थापना कर सके। There are times when God gives us the pastoring anointing to a great love to take care of the sheep. एक समय होता है जब परमेश्वर एक पासवान का अभिषेक देता है ताकि आप भेड़ों की रखवाली कर सके। So ask Jesus for the message that he wants to speak through you. इसलिए आप यीशु से पूछें कि वो कौन से संदेश आपके द्वारा बात करना चाहते हैं। And Jesus will lead you and guide you in your ministry. और यीशु मसीह आपकी सेवकाई में आपकी अगुवाई करेंगे। We're now told that Jonah obeyed the word of the Lord. और हमसे कहा गया, यहाँ पर देखते हैं कि योना परमेश्वर के वचन का पालन करता है। It's so important that we walk in obedience to Jesus. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम यीशु की आज्ञा का पालन करें। He was warning the people of Nineveh of God's judgments that would come upon them. और वे निनवे के लोगों को चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर का न्याय जो है प्रकट होगा। And there are times when we have to warn people around us that God is the righteous judge. और जब समय होता है कि हमें लोगों को चेतावनी देना है कि परमेश्वर एक धर्मी न्याय करता है। The wonderful thing is that the Ninevites believed God. और सबसे अद्भुत बात है कि निनवे के लोगों ने परमेश्वर में विश्वास किया। They knew that God was right. He was righteous to judge them and that they deserved judgment. और वे लोग इस बात को समझ पाए कि परमेश्वर जो है एक न्याय परमेश्वर है और वो सही कार्यों का न्याय करता है। And therefore they are going to repent with prayer and fasting. इसलिए उपवास और प्रार्थना के साथ में उन्होंने पश्चाताप करने का निर्णय लिया। And there's going to be a mighty revival with this whole city turning to God. और एक बहुत बड़ी जागृति को देखते हैं कि पूरा शहर जो है वो परमेश्वर की ओर फिर जाता है। This is one of the great moves of God in the Bible. और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा कार्य हम बाइबल में देखते हैं। And Jonah's words had such power that the message reached the king of them. और योना का ये संदेश में ऐसा सामर्थ था कि ये बातें जो है राजा तक पहुंचता है। And even the king shook and trembled before God. और यहाँ तक कि राजा भी परमेश्वर के सामने वो थरथराने लगा। Who knows what God will do when you obey the call of God on your life? क्या मालूम जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो क्या होगा। Even if you only win one soul, it's worth more than all the world. यदि आप एक आत्मा को भी अगर जीतते हैं तो ये सारा संसार के दौलत से कहीं बढ़कर है। But sometimes God raises up people to speak to kings and prime ministers. और कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो राजाओं को और प्रधानमंत्रियों से बात करें। That happens when Jesus Christ releases his anointing upon people. और ये तब होता है जब यीशु मसीह अपने अभिषेक को लोगों के ऊपर खोल देते हैं। I hope you've been encouraged to respond to the call of God on your life. क्या आप अपने जीवन की बुलाहट के प्रति उत्तर देने के लिए तैयार हैं? Jesus calls you to go. परमेश्वर आज आपको बुला रहे हैं। Preach the gospel to all creation.
ताकि सुसमाचार को सभी सृष्टि के लोगों को आप प्रचार करें, so that whoever believes will be saved. ताकि जो कोई विश्वास करे वो बच जाए। God bless you for your ministry. परमेश्वर आपको आशीष करे आपकी सेवकाई में। God bless you to be the powerful servant of God. परमेश्वर आपको आशीष करे ताकि आप शक्तिशाली परमेश्वर के सेवक बने। God bless you to store your treasures in heaven. परमेश्वर आपको आशीष करे ताकि आप अपने धन को स्वर्ग में संचय करें। Thank you for hearing God speaking to you. धन्यवाद परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए। God bless. परमेश्वर आपको आशीष करे। உம்மை பிரிந்தும் உம்மை மறந்தும் நான் ஒன்றும் செய்திடேனையா. உம்மை அல்லாமல் நான் தேடி செல்வது